Hello students, in last class we discussed about the definition of the chemistry, types of chemistry and units, that is CGS, MKS and SI units. In this class we will discuss about the laws of chemical combination, which are the basic laws for the study of chemical reactions. Okay, these are the initial laws. Now there are 5 basic laws, that is law of chemical conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law and lastly Avogadro's law. ठीक है, starting with the law of conservation of mass, and the statement for the law of conservation of mass is mass can neither be created nor destroyed. It means that whenever we carry any chemical reaction, in that chemical reaction neither reactant or nor product can be produced extra as well as the not be destroyed during the chemical reaction. For example, suppose we have taken one example of suppose nitrogen gas reacting with hydrogen gas and it will produce ammonia. Now according to this reaction there is a loss of one nitrogen atom. On this side there is only one nitrogen atom in the ammonia, and there is a gain of one hydrogen atom. There are 3 hydrogen. On this side there are only 2. Now according to law of conservation of mass, that reaction should not be like this. It means that we have to balance the chemical reaction because of this law, and on balancing of this reaction will become like this one. Okay, now in this chemical reaction there are same number of nitrogen as well as the hydrogen on the either side of the chemical reaction, as well as the reactant and on product side. Now according to this law, mass cannot be created, cannot be destroyed during the chemical reaction. It means that whatever mass of the material in the universe is always remain constant. It will just get converted from the one compound to another compound, or we can say that one format to another format, but there is no addition or there is no loss of any type of material during the conversion of this material into one to another form. Okay, now next law is law of definite proportion. Now statement is in a pure chemical compound always it contain exactly same proportion of element by its mass. For example, suppose we considering any compound, that is copper sulfate, ferric sulfate, ferrous sulfate, zinc sulfate, as well as sodium chloride. These are the different chemical compounds. In this way, in this compound, so whatever combination of the elements, for example copper sulfur oxygen, iron sulfur oxygen, sodium and chloride, zinc sulfur and oxygen, this combination of the elements is always remain in fixed ratio by their mass. Suppose this formula will changes from CuSO4 to CuSO3. It means that this compound will not be copper sulfate anymore. Okay, this having some in another name. Okay, now it means that whatever combination of the elements is always remains constant by their mass. ये जो combination रहेगा ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. अगर वो चेंज होता है इसका मतलब वो कंपाउंड वो नहीं है जो अपन बोल रहे हैं, वो कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी अगर केमिकल फॉर्मूला चेंज होता है तो. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला अपने को H2O ही लिखना पड़ेगा. अपन उसको H2O2 नहीं लिख सकते. अगर H2O2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इट मीन्स दैट वट एवर केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट बाय देयर मासेस. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाउ स्टेटमेंट इज व्हेन 2 elements combine to form 2 or more product, different product, then they combine with each other in fixed ratio of their mass. It means that when we consider 2 different elements that combine to each other to form 2 or more different product. For example, suppose I am considering hydrogen and the oxygen. Now these 2 elements can combine to form 2 different type of product. These are the 2 different elements, that is one is water and second one is hydrogen peroxide. Okay, one more example, that is carbon and oxygen. It form carbon monoxide, carbon dioxide, and there are
some another example also. We will start with this 2 1. Okay, now in this example there are 2 hydrogen and 1 oxygen. We will take a mass of this one. Mass of hydrogen in the water molecule is 2 gram and the mass of oxygen is 16 gram and total mass of water molecule is 18 gram. Okay, now in this example there are 2 hydrogen. Each hydrogen have 1 mass. With respect to that, there is 2 gram of oxygen and 2 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen. Okay, and according to this, molecular mass of the hydrogen peroxide is 34 gram. Now if we take a ratio of oxygen with respect to hydrogen in both the compound, that ratio is in this compound 1:8 and in this compound 1:16. This ratio is same. And if we take a combining ratio of oxygen with hydrogen, combining ratio of oxygen with hydrogen, it is always fixed. In this case, if we take there is 16 in water, there is 16 gram of hydrogen, and in case of hydrogen peroxide there is 32 gram of oxygen. What is the ratio? 16:32. ठीक है, इसको और अपन करते हैं तो कितना हो गया? 1:2 प्रोपोर्शन हो गया. ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये हमेशा फिक्स रहेगा. ये इसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, सपोज इसके आगे अगर जाता है तो क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा. ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन रहेगा ये हमेशा सेम ऐसे कैसे चलते रहेगा. ये कभी भी 1:3 नहीं होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के लिए. ये प्रोपोर्शन इसमें वो हमेशा बढ़ते रहेगा. सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का 2 अलग अलग एलिमेंट है, 2 अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं. तो इसका रेशियो ले लेते हैं. इस कंपाउंड में कार्बन का वेट कितना है? 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16. इसमें भी कार्बन का वेट है 12 और ऑक्सीजन का हो गया 32. तो यहाँ पे भी अगर जाते हैं तो ये ऑक्सीजन का कंबाइंड रेशियो विथ कार्बन, कंबाइनिंग रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन विथ कार्बन इज ऑल्सो सेम, दैट इज 1:2. ओके, तो ये जो रेशियो रहेगा ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, ये हमेशा फिक्स रहेगा. ये इसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ते जाएगा. आगे ये फिर से वही 4 हो सकता है. ठीक है, क्योंकि डबल हो रहा है वो कॉम्बिनेशन रेशियो. ओके, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Okay, this law is applicable only when the 2 different elements combine to form 2 or more different type of products. Okay, not same type of product. Okay, lastly next one is Gay-Lussac's law. This law is about the gaseous, only for the gases. Okay, this is also for the gas. Okay, now according to this law, when gases gaseous reactant react to produce gaseous product, it means that reactant is in gaseous state as well as that gaseous produce gaseous product also. ठीक है, now then they do so in a simple ratio by volume at constant temperature and pressure. Suppose we take hydrogen gas reacting with 1 mole of chlorine gas. In that condition it will produce 2 mole of hydrochloric gas. ठीक है, there is 1 unit, अपन इसको लीटर ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि मोल अभी तक आपको हुआ नहीं है तो अपन फिलहाल अपन इसको लीटर ले लेते हैं. 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विथ 1 लीटर ऑफ chlorine gas, it will produce 2 liter of hydrochloric gas. Okay, similarly one more example. Suppose नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना पड़ता है. इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस. ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पे 1 और ये हो गया 3, तो ये क्या हो गया? इसके कंबाइनिंग रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है और इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट हमेशा बनाएगा. कुछ भी रैंडम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये नहीं बनाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ. ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, equal volume of all gases at same
टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर अपन किसी गैस दो या दो से ज़्यादा इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस को लेते हैं, उनको अपन सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर रखते हैं, तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने दूसरे गैस में। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एट सेम टेम्परेचर या प्रेशर और उसका वॉल्यूम भी अगर इक्वल है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही हमेशा रहेंगे। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया हुआ है, 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लिया हुआ है, और उसी के साथ मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है। ठीक है, और टेम्परेचर नियर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ और प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, और उसका वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उस कंटेनर में रहेंगे, एग्जैक्टली उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैसेस के उस दूसरे कंटेनर में रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। कंडीशन अप्लाई, उनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए और उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। उस वक्त सभी गैसेस में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लॉज को अपन रिवाइज कर लेते हैं ना। पहला लॉ था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग टू दैट लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ना तो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा या फिर किसी रिएक्टेंट का लॉस भी नहीं होगा, हमेशा अमाउंट ऑफ मटेरियल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो क्या है, इन प्योर केमिकल कंपाउंड इट ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय इट्स मास। इसका मतलब क्या होगा, अगर अपन कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड लेते हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का अगर प्योर कंडीशन में है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट देन दे कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी उसका जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं और 2 से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमेशा उनका कंबाइन रेशियो भी हमेशा फिक्स होता है, उनका कंबाइनिंग रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन का अपन एक एग्जांपल लिया है, उसमें अपन सल्फर और ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते थे। ओके, नेक्स्ट वन फॉर द गैसेस, गे-लुसाक्स लॉ, व्हेन gaseous reactant react to produce gaseous product, then they do so in a simple whole ratio by volume at constant temperature and pressure। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, जब गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और गैसियस प्रोडक्ट बनाएगा तो उसका रेशियो जो रहेगा हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा, वो कोई भी फ्रैक्शन में उसका रेशियो कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद में लास्ट में हमने देखा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर कंडीशन सेम है, ठीक है, तो उसके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स भी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपके बेसिक लॉज। हाँ, गैस ये जो लॉज रहेंगे हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी या फिर 9th क्लास में भी देखा होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपके 11th क्लास में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर कंसिस्ट टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया हुआ है आपका एटम, ये ऐसे ही नहीं आया है, इसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है। जैसे कि ये वर्ड जो है एटम, ये 2 वर्ड से बना है, अ एंड टोमिया। ठीक है, अ का मतलब होता है नॉट और टोमिया का मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, यानी अगर अपन किसी भी मैटर को कंसिडर करते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट में अपन डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो एक लेवल या फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके आगे अपन उसको और ज़्यादा तोड़ नहीं पाएंगे और ज़्यादा डिविजिबल नहीं कर पाएंगे। उस स्टेट को ही अपन बोलते हैं एटम। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट डिविजिबल। ठीक है, इसका मतलब होता है
नॉट डिविजिबल, उसके आगे उसको अपन डिवाइड उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते या फिर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज एटम। उसी को अपन आज हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम या फिर जो एटम्स बोलते हैं ये वही है। एटम का मतलब होता है नॉट डिविजिबल, उससे आगे डिवीजन नहीं कर सकते। उसके बाद all atoms of same element have same physical as well as the chemical property। अगर अपन किसी भी मैटर के, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने हाइड्रोजन गैस ले लिया फिर ऑक्सीजन गैस ले लिया, तो ऑक्सीजन गैस के जितने भी एटम होंगे उन सभी के सभी ऑक्सीजन एटम की या फिर मॉलिक्यूल्स की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज का मतलब उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसका कंबाइनिंग रेशियो, कैसे रिएक्ट करता है, कौन से एलिमेंट का रिएक्ट करता है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। उसी तरह अगर अपन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंसिडर करते हैं, फॉर स्टेटमेंट को जैसा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऐसा रहेगा। अगर अपन हाइड्रोजन गैस को कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ या फिर क्लोरीन गैस के साथ, तो हाइड्रोजन गैस एटम की जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी वो पूरी तरह अलग रहेगी नाइट्रोजन गैस से या फिर क्लोरीन गैस से, वो कहीं भी मैच नहीं होगी। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर, मास सब कुछ अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स के वो एटम्स है, इसीलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ये जो एटम है ये अल्टीमेटली पार्टिसिपेट करते किसी केमिकल रिएक्शन में, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये जो एटम्स हैं यही कुछ पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं और कुछ कंपाउंड बनाते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल इसको अपन समझते हैं जैसे कि H2O हो गया, ठीक है, इसका रेशियो क्या है 2:1 है कंबाइनिंग रेशियो इसका। एक और कंसिडर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसमें भी देखो 2:1:4 इसका रेशियो है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है उस पर्टिकुलर एटम का उस कंपाउंड में ये हमेशा फिक्स रहेगा। उसके बाद में लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी देखा है। उसके हिसाब से सेम स्टेटमेंट है, इन केमिकल रिएक्शन एटम आर नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, बस उनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या फिर एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो सिर्फ 4 टाइप के रिएक्शन से उसके हिसाब से ये फॉलो होता है, एडिशन, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर रीअरेंजमेंट, ये 4 हैं। पर इन सारे केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, एटम हमेशा फिक्स ही रहते हैं, जितने हैं यूनिवर्स में उतने। इसी को अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी देखा हुआ, ये वही था, ठीक है, ओके।